फ्रेंड्स लेट अस सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ईसी परस्पेक्टिव में. ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन में दिस मॉडल क्वेश्चंस आर आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर राइटिंग मल्टीपल गेट पेपर्स. सपोज ईसी फेलोस आर ऑल्सो राइटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन. ठीक है, so like this combinations are there, so better thing is you should know it, and EC may be so expected. So instrumentation is very very important and EC के लिए भी very very important. Electrical के लिए low probability. Okay, so these type of questions are generally low probability. Now this question मैंने क्या किया, 3-4 concept mix कर दिया. In this question I mixed three to four concepts. One, there is a AND gate here, there is a counter. So this part of the circuit is simply digital. ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे दिस इज सिंपली डिजिटल. सो नाउ दिस एन ऑप एम्प कंपरेटर. सो दिस पार्ट इज एन ऑप एम्प कंपरेटर, सो इट्स अ सिंपल एनालॉग पार्ट. ओके, एंड हियर व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन अ सिंपल नेटवर्क थ्योरी, ट्रांजिएंट थ्योरी. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिएंट्स. ठीक है, सो ट्रांजिएंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिएंट्स. ठीक है, एंड सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी सिंपल. So now let us see what exactly is happening. Please understood what exactly is happening. He is telling that the counter is reset at t equal 0 minus. इसका मतलब क्या है? Initially counter reset. Initially counter reset है. Now switch S is connected to 5 volts at t equal to 0. T0 पे switch को कहाँ पे connect किया? 5 volts पे connect किया. तो क्या होगा? What is going to happen whenever I connect the switch to 5 volts? Now let us see what exactly happens. Now suppose we are having the circuit. So we are having the circuit, please. ठीक है. It's a 5 volts. Oh, excuse me. It's a 5 volts. So now we are having 1 kilo ohm. Okay, 10 microfarad, correct, right? 1 kilo ohm and 10 microfarad. Yes, 1 kilo ohm and 10 microfarad. You're connecting like this. When this is getting connected at t equal to 0. At t equal to 0, you're getting connected like this. So now what is going to happen? It's a simple. Now this output is being compared. This output is being compared now. Okay, so the output of this particular circuit जो है इसको कंपेयर कर रहे हैं. The output of this circuit is getting compared. किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं बताइए? What are we comparing with? So we are basically comparing with it's a potential divider. इसको देखिए, it's a potential divider. Simply understood. See, simply you are having 2.5 volts here. Understood, 2.5, and here you will have 2.5. Understood, simply 2.5. So it's a simple potential divider. Understood, potential divider. So this voltage will be 2.5 volts. Understood, 2.5 volts. So you are comparing with 2.5 volts. Very very simple. क्या हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में? It's very very interesting question. इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है. एक डिजिटल पार्ट है, वन एनालॉग पार्ट इज देयर. ठीक है, एंड वन नेटवर्क 3 पार्ट इज देयर. अंडरस्टैंड, वन नेटवर्क पार्ट इज देयर. So the question is based on the concept of transients. Question is based on the concept of transients, please. At initially counter 0. Okay, the switch is connected to 5 volts at t0. So t0 पे 5 volts को t equal 0 पे switch को 5 volts पे कनेक्ट किया. अब ये बताइए, जैसे 5 volts को कनेक्ट करेंगे, I don't you think that immediately current will start flowing, capacitor will be initially short circuit and automatically charging will happen. And we know that it's a simple first order system. If I just call it as, okay, if I just call it as V out, ठीक है, what is a V out? Tell me. V out will be equal to, ठीक है, so it is going to be like this. V out will be equal to, it will be raising like this. Understand, it's going to raise like this. ठीक है, this is the equation of the V out, 5 volts. So it's going to be 5 into 1 minus e power minus t by RC. Understood, t by RC. This is the equation of the graph. ठीक है, so now this V out is compared. Understood, so हो क्या रहा है भाई? This is simple. You are connect at t0, you are connecting 5 volts. When you connect 5 volts, it's a simple RC circuit. ठीक है, simple RC circuit, and initially capacitor acts as short circuit. ठीक है, and the capacitor keeps charging. Understood, charging. तो यहाँ पे क्या होगा now? ठीक है, the output of the capacitor, this output across the capacitor is now compared. Okay, output across the capacitor is now compared with the 2.5 volts. Understood, we are basically comparing output across the capacitor with the 2.5 volts. Understood, 2.5 volts के साथ compare किया. 2.5 कैसे आए भाई? कैसे आए? Simple potential divider. So this part of the circuit देखेंगे, it's a simple potential divider. Okay, simple voltage divider, please. Understood, this part of circuit is a simple voltage divider. So now, so this voltage divider is used to get 2.5 volts here. Understood, so यहाँ से अगर output लेंगे, automatically you are going to get 2.5 at this point. Understood, 2.5 volts here at this point. ठीक है, so now what is happening in this particular question बताइए? So this capacitor voltage which is V out, the voltage across capacitor is now compared with, the voltage across capacitor is now compared with the 2.5 volts. ठीक है, 2.5 volts. And you know, it's a simple transient based question. At t0 हमने कनेक्ट कर दिया, t0 पे कनेक्ट कर दिया 5 volts. So automatically क्या होगा? Capacitor will charging, capacitor keeps charging, and the output will be equal to 5 into 1 minus e power minus t by RC. So now यहाँ पे क्या होगा? Immediately please observe here what is going to happen. Here we are giving AND gate. Now let's separate the digital part. Initially क्या होगा? This value is V out. Okay, initially capacitor 0.
Initially capacitor short circuit, capacitor is 0. Initially you are having 0. Okay, 2.5 is present here. Okay, and initially you are having 0 here because initially capacitor short circuit, you are taking output voltage across capacitor. You are taking output voltage across capacitor. So initially you are having 0. So 2.5 and 0 क्या होगा बताइए? You are going to get plus VSAT. You are going to get plus VSAT, which is nothing but 1. Okay. So initially क्या होगा? What is going to happen initially capacitor acts as short circuit, you are having 0. So you are going to get plus VSAT. Understood? Plus VSAT. Plus VSAT is nothing but 1 only. So now here basically look here. So you are having a simple AND gate. So when you are getting 1 and you are having clock, 1 and clock will be coming here. So automatically up counter is being automatically clock is being applied to up counter. ठीक है? बहुत ही सिंपल है. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Initially capacitor 0. ठीक है. So now you are comparing with 2.5, you are going to get plus VSAT. Understood? Plus VSAT. Plus VSAT means you are simply having AND gate. So you are applying clock here. Automatically clock will get applied to the up counter, please. Understood? Up counter के लिए clock apply हो जाएगा. So up counter will keep up counting. ये कब तक चलेगा? ये till what time it will go keep going, please. Understood? So this will be going, up counter will be counting. So what is happening, please? I connected at T0, I connected 5 volts. As soon as you connected 5 volts, capacitor initially short circuit. Because capacitor is initially short circuit, we are taking output across capacitor. Initially capacitor voltage 0. Now it's a simple comparator. You are having a simple comparator. You are comparing with 2.5 volts. So 2.5 is more than 0. So obviously you will get plus VSAT. Plus VSAT means 1. Automatically up counter is up counting. So this up counting will happen, keep on happening. When will the up counting stop? The up counter stops when this point reaches, okay, slightly more than 2.5. ठीक है, up counting कब रुकेगा? We'll calculate the mathematics. But when will the up counting stop, please? Understood? When will the up counting stop? So whenever so this is when will the up counting stop? Suppose for example, just assume this is 2.5 fixed. Okay, this is fixed. Understood? Suppose you are getting here 2.500001. Okay, minor value, just 2.5 touch हो गया, slightly increase हुआ. Automatically you will get minus VSAT here. Understood? Minus VSAT यानी 0. 0 into clock will be 0. Understood? So up counter will stop counting here. Understood? Up counter stops counting here. यानी ये up counting कब तक चलेगा? Till what time the counting will reach? Understood? Counting will go on. The counting will go on until our Vout reaches 2.5. मैंने क्या किया? सिंपल ट्रांजिएंट बेस्ड क्वेश्चन है. T0 पे 5 वोल्ट्स अप्लाई किया. ओके, उसके बाद इनिशियली कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट सर्किट यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है ऑटोमेटिकली. ठीक है, 2.5 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस VSAT आ गया. प्लस VSAT यानी अप काउंटिंग इज काउंटर इज अप काउंटिंग. ठीक है, सो यहाँ पे काउंटर इज अप काउंटिंग. ओके, काउंटर अप काउंटिंग करता जाएगा. ये कब तक करेगा? कब तक अप काउंटिंग करता रहेगा? कब तक अप? सो व्हेन विल द अप काउंटिंग स्टॉप? देखते हैं. अप काउंटिंग स्टॉप करने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए. यहाँ पे 0 कब आएगा? यहाँ पे माइनस VSAT होना चाहिए. माइनस VSAT कब आएगा? जब ये दिस वैल्यू ऑफ वी आउट शुड बी मोर देन वी फिक्स्ड वैल्यू. ठीक है, सो दैट मीन्स अप काउंटिंग विल हैपन एज लॉन्ग एज वी आर ओके बिटवीन 0 to 2.5. अंडरस्टूड? सो जब ये 2.5 टच हो जाएगा, दिस वैल्यू 2.5 टच हो जाएगा, अप काउंटिंग रुक जाएगा. अप काउंटिंग रुक जाएगा. सो ऑन द ग्राफ पेपर इफ आई शो, ठीक है, so if on the graph paper if I show, so this is our 5 volts, this is our 5 volts, please. Okay, and the value is increasing like this. Understood? The value keeps increasing like this. ठीक है, 5 into 1 minus e power minus t by r. See, this is nothing but time and this nothing but time and this nothing but v out. ठीक है, अप काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अप काउंटिंग विल बी गोइंग ऑन अंटिल वी रीच 2.5. अंडरस्टूड? अंटिल 2.5 तक अप काउंटिंग चलता रहेगा. ठीक है, so till 2.5 volts up counting will be running. Understood? Let's assume that this time is t1. ठीक है, so this is the time for which up counting is running. Understood? उतना देर up counter चलेगा, उतना देर up counter will be counting. Understood? उतना देर up counter will be counting. सिंपल. अंडरस्टूड? आपने क्या किया? T0 पे 5 वोल्ट्स अप्लाई किया. T0 पे 5 वोल्ट्स अप्लाई किया तो इनिशियली कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है, ऑटोमेटिकली वोल्टेज अक्रॉस शॉर्ट सर्किट विल बी 0. तो यहाँ पे 0 आ गया. सो यहाँ पे 1 आ गया, अप काउंटिंग शुरू हो गया. ये अप काउंटिंग कब तक चलेगा? ऑटोमेटिकली ये चलता ही रहेगा. अंडरस्टूड? ये वोल्टेज से कैपेसिटर विल कीप चार्जिंग. जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज करेगा तो क्या होगा? ये 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, कैपेसिटर वैल्यू बढ़ता जाएगा. बट फिर भी क्या होगा? अंडरस्टूड? फिर भी यहाँ पे 1 ही रहेगा. अंडरस्टूड? 1 ही रहेगा. कैन अप काउंटर विल कीप काउंटिंग. ये कब रुकेगा? अप काउंटर को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे 0 आना चाहिए. जब तक यहाँ पे क्लॉक आएगा तब तक काउंटिंग करता रहेगा. अप काउंटर स्टॉप करने के लिए अंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए. 0 के लिए यहाँ पे माइनस VSAT आना चाहिए. माइनस VSAT कब आएगा? व्हेन वी आउट इज मोर देन स्लाइटली मोर देन 2.5. ठीक है, सो दैट मीन्स आवर काउंटिंग रेंज, दिस इज नथिंग बट आवर काउंटिंग रेंज. अंडरस्टूड? 0 से T1. ठीक है, काउंटिंग रेंज is basically 2.5 volts तक. Okay, so whenever V out is reaching 2.5 तब automatically बंद हो जाएगा. So now let us simply find the value in the up counter, please. Understood? value in the up counter निकालते हैं. up counter कितना देर चला? So up counter ran for, okay, up counter ran for, understood? up counter ran for T1.
सो T1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स ट्राई टू फाइंड द T1 प्लीज। अंडरस्टूड? T1 ओके कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी आउट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। अंडरस्टूड? टी बाई आर सी। ओके एट टी इक्वल टू T1 क्या होगा बताइए? एट टी इक्वल टू T1 क्या होगा? ओके वी आउट विल बी इक्वल टू 2.5 वी आउट इक्वल टू 2.5। बस इक्वेट सब्स्टिट्यूशन कर दो, ऑटोमेटिकली क्या हो देखेंगे। सो 2.5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस T1 बाई आर सी। अंडरस्टूड? इसको इस तरफ लेके जाओ तो ऑटोमेटिकली ये 2.5 बाई 5 इज नथिंग बट 0.5 उस तरफ लेके जाएंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट सिंपली T1 इज इक्वल टू, ठीक है, एक काम करते हैं, वन स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं, ठीक है। सो 0.5 उस तरफ लेके जाएंगे। सो ई पावर माइनस T1 बाई आर सी, ई पावर माइनस T1 बाई आर सी इज इक्वल टू, ठीक है, 0.5। सो यू आर गोइंग टू गेट T1 इज इक्वल टू ln 2, ओके, इंटू आर सी। अंडरस्टैंड? ln 2 इंटू आर सी। ln 2 इज नथिंग बट 0.693, ठीक है, 0.693। सो T1 वैल्यू इज इक्वल टू 0.693 इंटू आर सी प्लीज। अंडरस्टूड? सो इतना देर अप काउंटर चला। सो दिस इज द ड्यूरेशन फॉर विच अप काउंटर रैन, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू इन द अप काउंटर? अप काउंटर वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, या वो भी बता देता हूँ। लेट्स टेक द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। T1 इज इक्वल टू 0.693 इंटू आर वैल्यू इज नथिंग बट 1 किलो ओम, ठीक है, इंटू दिस इज 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड मीन्स 10 इंटू 10 पावर माइनस 6। अंडरस्टूड? 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, okay. So T1 value will be equal to, understood, T1 value so many seconds, so T1 value will, this is ln 2, natural logarithm 2, ठीक है। So this is nothing but 10 power minus 2, ठीक है, 10 power minus 2। So we can simply say, ठीक है, so we can simply say this is nothing but 6.93, understood, 6.93, ठीक है, 6.93 into this is nothing but 10 power minus 2, so this is nothing but 10 power minus 3, so 6.93 milliseconds please। Understood? 6.93 milliseconds। So yeah, 1 kilo ohm only, right? So yeah, correct। So it's basically, understood, basically it's 6.93 milliseconds। So total time taken is nothing but 6.93। इतना देर के लिए काउंटर चला, अंडरस्टूड, इतना देर के लिए काउंटर चला। व्हाट इज द वैल्यू इन द अप काउंटर? कैसे निकालेंगे? हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू इन द अप काउंटर प्लीज? अंडरस्टूड? हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू इन द अप काउंटर? नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू इन द अप काउंटर, ठीक है। सो फटाफट देखते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू इन द अप काउंटर प्लीज। अंडरस्टूड? अप काउंटर का वैल्यू निकालते हैं। सपोज अप काउंटर इज रनिंग फॉर 100 माइक्रोसेकंड्स, क्लॉक टाइम पीरियड इज 50। व्हाट्स द वैल्यू? सो सपोज सिंपल, अंडरस्टूड, अप काउंटर इज रनिंग फॉर, अप काउंटर स्टार्टिंग वैल्यू 0। अगर अप काउंटर 100 माइक्रोसेकंड के लिए चलता है, क्लॉक टाइम पीरियड इज 2 माइक्रोसेकंड्स, वैल्यू इज 50। सिंपल डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। सो इट्स प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लीज। अंडरस्टूड? प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल टफ नहीं है। ओके, सो नाउ ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द क्लॉक टाइम पीरियड प्लीज? So the clock time period is nothing but the clock time period. What is the clock time period given? Let's see. Clock time period is equal to, कितना दिया clock time period? 10 kilohertz। Understood? Clock time period is nothing but 10 kilohertz, ठीक है। Clock time period is equal to simply 10 kilohertz, nothing but 10 power 4। So now let's see the value in the up counter. Value in the up counter, okay. Value in the up counter is equal to, understood, up counter कितना देर चला? 6.93 into 10 power minus 3 milliseconds तक चला। Understood? 10 power minus 3 seconds तक चला, ठीक है, right। So divided by, understood, divided by clock time period, divided by 10 power 4। So it's simply the value in the up counter is nothing but 69.3। So 69.3 इसका मतलब 69। Understood? So value in the up counter is nothing but 69। वेरी वेरी सिंपल। अगर सिंपल कॉमन सेंस भाई, अप काउंटर 100 माइक्रोसेकंड्स के लिए चलता है, 2 माइक्रोसेकंड का क्लॉक है, तो कितने क्लॉक पल्स आ चुके हैं? सो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इज इक्वल टू, सिंपल, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस के, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इज इक्वल टू वैल्यू द अप काउंटर। सपोज सिंपल, अगेन इसको एक और बार देखते हैं, ओके, इसको एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। सो ये डेसिमल नंबर है, अंडरस्टूड, दिस इज नथिंग बट डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, अंडरस्टूड, डेसिमल नंबर है ये, ठीक है। बाकी हेक्साडेसिमल पे जो भी कन्वर्ट करना चाहते कर सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। सो सिंपल, अप काउंटर का स्टार्टिंग वैल्यू 0, इसको देख लेते हैं, ओके। अप काउंटर का स्टार्टिंग वैल्यू 0, पहला क्लॉक पल्स दिया 1 में जाएगा, डेसिमल में बता रहा हूँ, ठीक है। 10 बिट अप काउंटर, 8 बिट अप काउंटर, कौन सा भी हो, स्टार्टिंग वैल्यू 0, फर्स्ट क्लॉक पल्स में 1 में जाएगा, डेसिमल में बता रहा हूँ, सेकंड क्लॉक पल्स में 2 में जाएगा, थर्ड क्लॉक पल्स में 3 में जाएगा, 10th क्लॉक पल्स में 10 में जाएगा, 20th क्लॉक पल्स में 20 में जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जितना अप्लाई करेंगे वही वैल्यू होगा। सो इन अप काउंटर जितना क्लॉक पल्सेस अप्लाई करेंगे उतना ही वैल्यू होगा, अंडर उतना ही वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर अप काउंटर 100 माइक्रोसेकंड चलता है, ओके, 2 माइक्रोसेकंड का क्लॉक है,
अब इसका मतलब कितना क्लॉक पल्स अप्लाई कर चुके हैं, 50 क्लॉक पल्स अप्लाई कर चुके हैं, तो उसका वैल्यू 50 होगा, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, पहला क्लॉक पल्स में 1 आएगा, दूसरा क्लॉक पल्स में 2 आएगा, तीसरा क्लॉक पल्स में 3 आएगा, 50 क्लॉक साइकिल्स में 50 आएगा, ठीक है. सो लाइक दिस. सो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इन द अप काउंटर इज नथिंग बट डेसिमल वैल्यू, अंडरस्टैंड, डेसिमल वैल्यू. सो 69 को अप्रॉक्सीमेट कीजिए. इसको 70 क्यों नहीं कर रहे हो? मेनी स्टूडेंट्स विल हैव डॉट है 70 करूंगा, नहीं 70 क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है यहाँ पे देखिए, ओके 70 कब आएगा, 70th क्लॉक पल्स के बाद आएगा. सो 69.3 का मतलब क्या है, 69 और 70 के बीच में है, यानी 70th क्लॉक पल्स नहीं आया. सिंपल. पहला सी इनिशियली जीरो, अप काउंटर जीरो, पहला क्लॉक पल्स आने के बाद 1 होगा, दूसरा क्लॉक पल्स आने के बाद 2 होगा, तीसरा क्लॉक पल्स आने के बाद 3 होगा, ठीक है. 70th क्लॉक पल्स आने के बाद 70 होगा, 70th क्लॉक पल्स नहीं आया, ठीक है. तो ये है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 69.8 हो, अगर मान लीजिए 69.8 है, ठीक है, उसको भी 69 ही बोलना चाहिए, अंडरस्टूड, उसको भी 69 ही बोलना चाहिए, क्योंकि 70th क्लॉक पल्स नहीं आया, 70th क्लॉक पल्स नहीं आया, अंडरस्टूड, नहीं आया. सो ये डेसिमल में 69 आ गया, अंडरस्टूड, डेसिमल में 69 आ गया. इसको किस में पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन में किस में पूछ रहा है, हेक्साडेसिमल में पूछ रहा है. हेक्साडेसिमल आप कर ही सकते हैं, ठीक है. सो अप्रोप्रिएट आंसर इज 45, अंडरस्टूड, 45 h मतलब 16, ठीक है. सो 16 पावर 1, 16 पावर 0, विच इज नथिंग बट 64 + 5, 69 बेस 10, यही आंसर. एक और बार क्विकली देखते हैं. Okay, this question is a mix of 3 topics: and transient analysis of analog, simple, transient analysis of network theory, analog electronics का कंपैरेटर और डिजिटल का ये, ठीक है. मैंने तीनों मिला के बना दिया. T0 पे हमने क्या किया, 5 वोल्ट्स कनेक्ट कर दिया. सो इनिशियली कैपेसिटर जीरो, इनिशियल कैपेसिटर एक्सेस शॉर्ट सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली एक्सेस शॉर्ट सर्किट, योर आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज 1, तो दैट इज रनिंग द अप काउंटर. ये अप काउंटिंग होता जाएगा. कब रुकेगा, अप काउंटर स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप अप काउंटर क्या होना चाहिए, तो टू स्टॉप अप काउंटर यहाँ पे 0 आना चाहिए. अगर यहाँ पे 0 कब आएगा, -V आएगा. -V कब आएगा, जब नेगेटिव ज़्यादा आना चाहिए, यानी माई Vout शुड क्रॉस के 2.5, Vout 2.5 हल्का सा क्रॉस करेगा, तब काउंटिंग बंद हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ Vout क्या है बताइए, Vout इज नथिंग बट 5 × 1 - e⁻ t/RC. सिंपल, इट्स अ सिंपल एक्सपोनेंशियल कर्व, ये तो हम जानते हैं ना, ठीक है. जब डीसी अप्लाई करते हो तो यही होगा. सो सिंपल ट्रांजिएंट, अंडरस्टूड. सो यानी काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ठीक है. सो 2.5 तक काउंटिंग करेंगे, ठीक है. अपना Vout का वैल्यू, सो काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, काउंटिंग का रेंज है 0 से T1, विच इज नथिंग बट 0 से 2.5, ठीक है. वोल्टेज एक्सिस में 0 से 2.5. सो ना बाकी मैंने सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया, T1 का वैल्यू निकाला, T1 का वैल्यू निकाला, ठीक है. सो यहाँ पे 0.693 कहाँ से आता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, ये तो हम जानते हैं, कई बार हमने एनालॉग में इस्तेमाल किया होगा, ठीक है. अब नाउ मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे बेसिकली सो आई बेसिकली वांट वैल्यू इन द अप काउंटर, ठीक है. वैल्यू कैसे मिलेगा, सो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस गिनिए, तो वही चीज़ वैल्यू इन द अप काउंटर होगा, ठीक है. क्योंकि अप काउंटर का स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, पहला क्लॉक पल्स आने के बाद 1 होगा, दूसरा क्लॉक पल्स के बाद 2 होगा, तीसरा क्लॉक पल्स के बाद 3 होगा, ठीक है. 69 क्लॉक पल्सेस के बाद 60 होगा, 70 क्लॉक पल्सेस देने के बाद ही 70 होगा, अंडरस्टैंड. अप्रॉक्सीमेट ना कीजिए, वो 69 इज द अप्रोप्रिएट आंसर. इसको हेक्साडेसिमल में 45H बोलते हैं, ठीक है. राइट, आई थिंक ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.